Hello guys, welcome to the channel. Hope you all are doing good. My name is Niharika and I am 3 times NET JRF and आपको पता है हम अपने चैनल पे सीरीज हमने शुरू की है ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग को कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने बनाया है जिसमें हमने स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड्स को डिस्कस किया था और आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। Also, as you all know that Unacademy is here with a roadmap and strategy for JRF 2021. So in these sessions, educators will guide you on their respective subjects, educators approach and towards the subject. So these classes would be helpful for all the aspirants who are starting their preparation for the upcoming NTA UGC NET 2021 examination. So to join these free live classes, you will find the link in the description box below. Also, we have some good news for all the labor law aspirants. So Unacademy's top educator Lakshmi Kushwaha has curated the best topics and strategies to boost your preparation for NTA NET 2021. And in these series, she has included those topics which were asked for the first time in November 2020 exam in the subject code 55. So this session will be giving you detailed explanation of the topics which will be helpful for your 2021 exam preparation. To join this session, you will find the link in the description box below. Also, there is a price hike for the new batches for NTA UGC 2021, so you can start your preparation early and beat the price hike. I hope this is clear and all the links you will find in the description box below. Also, we have online classes for NTA UGC NET. These classes are run by me and as you all know that I am 3 times NET JRF, so based on my experience I bring to you the most important and the most suitable knowledge and study material that you need to prepare for the NTA UGC 2021 exam. So you can prepare for these strategies and study material from the convenience of your home. So you can visit our website which is www.niharikajaiswal.com to avail the course, or you can call or WhatsApp us on 739-575-509. This is our WhatsApp and call number. You can call in case you have any queries. For more of the info about our online course, we will be discussing it at the end of the video. And now let's begin with the teaching methods. तो जैसे कि आपको पता है कि हम पार्ट 2 यहाँ पे लाए हैं और दिस इज मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स. सो ये मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स क्या हैं गाइस? ये ऐसे मेथड्स हैं जो कि एक मिक्स होते हैं बोथ स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक मेथड्स के. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट स्टूडेंट सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक. कुछ मिक्स्ड टीचिंग मेथड्स भी होते हैं जहां पर हम स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड और टीचर सेंट्रिक मेथड्स दोनों को यूज करते हैं. सो जो मेनली ग्रुप टीचिंग मेथड्स होते हैं वो होते हैं ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, प्रोजेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा. सो ये हमने डिस्कस की है नेक्स्ट स्लाइड्स में अपनी, जो कि है टाइप्स ऑफ मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स. एक है ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्ले, ट्यूटोरियल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन. ये सारे अभी हम इसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन. डिस्कशन मेथड्स आर अ वैरायटी ऑफ forums for open-ended collaborative exchange of ideas among a teacher and students or among the students for the purpose of furthering students thinking, learning, problem solving, understanding और literally appreciation. तो एक डिस्कशन मेथड्स क्या होते हैं? ये एक फोरम टाइप के होते हैं जहाँ पे आप ओपन एंडेड डिस्कशन कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो आइडियाज. तो डिस्कशन मेथड्स में बेसिकली टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में आइडियाज डिस्कस करते हैं. वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद कर सकते हैं, स्टूडेंट की थिंकिंग हॉरिजॉन को एक्सपैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिटरली अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो, लिटरली अप्रिसिएशन में भी मदद कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज ऑफ अदर्स. कोई आइडियाज कोई दूसरा देता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने आइडियाज में रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन कोई भी एक मैटर के बारे में एक बिल्डअप कर सके. तो डिस्कशन मेथड्स में बेसिकली एक ओपन एंडेड डिस्कशन होता है जहां सब लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं, दूसरे के पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि उनकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन बढ़ पाए. डिस्कशन ग्रुप में अगर अमंग मेंबर्स
चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो, होल क्लास में, टीचर लेड हो या स्टूडेंट लेड हो, कभी भी डिस्कशंस हो सकते हैं। ये स्टूडेंट्स की थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज और इंटीग्रेट करता है, फैक्ट्स को, ठीक है, और स्टिमुलेट करता है थिंकिंग प्रोसेस को, कि एक जब इंसान डिस्कशन करता है ना तो उसकी थिंकिंग पावर जो है वो स्टिमुलेट होती है, वो जागृत होती है कि हाँ अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, वो डिस्कशन होता है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस एनालाइज कर पाती है और वो फैक्ट्स को इंटीग्रेट कर पाता है, एनालाइज कर पाता है। सो बेसिकली इस तरह ये मदद करता है टीचिंग मेथड में। दूसरा है हमारा सेमिनार मेथड। ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड वे ऑफ टीचिंग है। इसमें ये ऐसे सेमिनार मेथड जो होता है ये मोस्टली यूज होता है हायर एजुकेशन में। जब आप कॉलेज लेवल पे चले जाते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हो, तब वहां पे ज्यादा यूज होता है। Under this method, one trainee or student will prepare a paper on a given topic, issue or problem, which is then presented to the whole group for discussion and analysis. जैसे आपने सुना होगा सेमिनार हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, तो इसमें जो ट्रेनी होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो एक पेपर प्रेजेंट करता है गिवन टॉपिक पर, कोई इशू है या प्रॉब्लम है, फिर वो उसे होल ग्रुप के सामने डिस्कस करता है, उसको एनालाइज करता है। ये मेथड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ट्रेनीज को टू प्रिपेयर एंड कंट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। ये क्या हमारी मदद करता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्या कंट्रीब्यूशन है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना, उसको कैसे कंट्रीब्यूट करना, अपनी रिसर्च और एनालिसिस करता है। तो ये भी एक मेथड ऑफ टीचिंग है। फिर आता है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन या हम सिंपली पैनल बोले, ये इन्वॉल्व करता है ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टू डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, टिपिकली एट साइंटिफिक, बिजनेस और एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस। बेसिकली डिस्कशन होता है जहां पे लोग आपस में गैदर होते हैं और डिस्कस करते हैं एक ऑडियंस के सामने। जैसे आपने बोला पैनल डिस्कशन हो रहा है, तो ये भी एक तरीके का टीचिंग मेथड है। तो यहाँ पे ऑडियंस के सामने साइंटिफिक, बिजनेस या एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो वहां पे पैनल डिस्कशन होता है। इनके पास एक मॉडरेटर भी होता है जो गाइड करता है डिस्कशन को, और समटाइम्स एलिसिट्स ऑडियंस क्वेश्चंस विद द गोल ऑफ बीइंग इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। तो जो मॉडरेटर होता है वो डिस्कशन को गाइड करता है, कभी कभी ऑडियंस से क्वेश्चंस भी ले लेता है ताकि एक इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग पैनल डिस्कशन हो पाए। द लीडर मस्ट टेक स्पेशल केयर टू सेलेक्ट द पैनल मेंबर्स। तो पैनल मेंबर्स का बहुत ही ज्यादा, एक लीडर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल केयर उसको करनी होती है ताकि वो पैनल मेंबर्स को अपने सिलेक्ट कर पाए। नेक्स्ट वी हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन अ टॉपिक एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। आपने देखा होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ये लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि वो एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को एक टॉपिक पे फोकस करने के लिए, और यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में बच्चे जो है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आइडियाज सजेस्ट करते हैं, जिसके दिमाग में जो आइडियाज होता है वो वहां पे बोलता चला जाता है। टीचर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बिगिन कर सकता है एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम को क्या करके, एक क्वेश्चन को टारगेट करके एक प्रॉब्लम है उसे वो बता सकता है, या एक टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। अंडर दिस मेथड एनीवन कैन एक्सचेंज रिमार्क्स विद एनीवन एक्सेप्ट दैट द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द आइडिया एट द टाइम व्हेन व्यूज आर बीइंग इनवाइटेड। तो यहाँ पे सिर्फ अपना क्या करते हैं, इस टीचिंग मेथड के अंदर क्या होता है, इस टीचिंग के मेथड के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है भाई वो सिर्फ आइडियाज बता सकते हैं, कोई आइडिया को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है कि नहीं अब ये नहीं सही है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं, सिर्फ लोग अपने आइडियाज यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट वर्क। द प्रोजेक्ट मेथड इज अ टीचर फैसिलिटेटेड कोलैबोरेटिव अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स एक्वायर and applied knowledge and skill to define and solve realistic problem using a process of extended inquiry। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि एक टीचर का फैसिलिटेटेड कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है नॉलेज पाते हैं और नॉलेज अपनी अप्लाई करते हैं, डिफाइन करते हैं रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अंडर दिस मेथड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। तो आपने देखा होगा कई बार हमें स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं जहां पर स्टूडेंट्स जो है हम जाके उस प्रोजेक्ट वर्क पे काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, तो वही प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ पर हम क्या अपने एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, कोई रोट लर्निंग पे नहीं होता है बट हमारे एक्सपीरियंस पे बेस होता है। इन दिस मेथड वेरी इट इज टॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स एंड फोकस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। जैसे कि मैंने बताया रोट लर्निंग यहाँ पे नहीं होती, कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया सिखाया बहुत कम जाता है, बट स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की जाती है कि वो एक्सपेरिमेंट करे, खुद से करे और उसी से लर्न करे। सो बेसिकली
ये इसका मोटो होता है। देन वी हैव रोल प्ले। रोल प्ले एक ऐसी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो एक्सप्लोर करें रियलिस्टिक सिचुएशंस बाय इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन अ मैनेज्ड वे इन ऑर्डर टू डेवलप एक्सपीरियंस एंड ट्रायल डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन अ सपोर्टेड एनवायरनमेंट। तो रोल प्ले एक ऐसी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो एक रियलिस्टिक सिचुएशंस में एक रोल अदा करे, इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके और ट्राई कर सके अलग अलग स्ट्रैटेजीज। इसमें हम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड जो है यूज करते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद अ ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन। अमंग ऑल द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस हैं, बट जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि यहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे चाहिए होती हैं। एक ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट को मिल जाता है क्योंकि वो जो उसको रोल दिया होता है वो उसको प्ले करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। फिर वी हैव ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल एजुकेशन में एक मेथड होता है ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड मे बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। ट्यूटोरियल एक प्रोसेस, यहाँ पे हम नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट हम एक लर्निंग प्रोसेस की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है एंड स्पेसिफिक देन अ बुक और अ लेक्चर। अ ट्यूटोरियल सीक्स टू टीच बाय एग्जांपल एंड सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। ये वाला मेथड क्या है कि इस मेथड में बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव कंटेंट होता है और अ ट्यूटोरियल सीक्स टू टीच बाय एग्जांपल एंड सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। एग्जांपल के द्वारा टीचर यहाँ पे समझाता है और एक टास्क के द्वारा बच्चों को इंफॉर्मेशन सप्लाई करने की कोशिश की जाती है। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग स्मॉल ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हम देखते हैं, तो वही ट्यूटोरियल होता है यहाँ पे कि एक टास्क करवाने के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, एक एग्जाम्पल देने के द्वारा बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन जैसे एक डेमो होता है, इज अ टीचिंग मेथड यूज्ड टू कम्युनिकेट एन आइडिया विद द एड ऑफ विजुअल सच एज फ्लिप चार्ट्स, पोस्टर्स, पावर पॉइंट एटसेट्रा। अ डेमोन्स्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन हाउ टू मेक और डू समथिंग इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये क्या होता है, ये मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा होता है कि यहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं आइडिया अपने विजुअल्स के साथ, फ्लिप चार्ट, पोस्टर्स, पावर पॉइंट एटसेट्रा। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, इज अ पर्सन ऑफ टीचिंग समवन हाउ टू मेक और डू समथिंग। तो यहाँ पे जैसे हम डेमो देते हैं, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में टीचिंग मेथड के हिसाब से क्या होता है कि हाउ टू मेक और डू समथिंग इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे किया जाता है उसको हम करना बताते हैं। ये आइडिया इस मेथड पे बेस्ड है कि लर्निंग बाय डूइंग, आप कर करके सीखिए, और लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। रोट लर्निंग से, जो आपने पढ़ी लिखी भाषा है, आपने कुछ फिगर्स रट्टाफिकेशन कर लिए, उससे आप जाइए असलियत में काम करने के लिए, तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता है, राइट? सो या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। इसमें हमने कई सारे मेथड्स डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट थे, एंड ऐसे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो रिगार्डिंग अवर ऑनलाइन क्लासेस, एज यू all know we have online classes for NTA UGC पेपर 1, कॉमर्स और मैनेजमेंट। 3 सब्जेक्ट्स के हमारे पास हैं। अगर आपको कॉमर्स या मैनेजमेंट सब्जेक्ट नहीं तो आप पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ सेपरेट, या कॉमर्स और मैनेजमेंट का भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉमर्स पेपर 1 के साथ, मैनेजमेंट पेपर 1 के साथ, राइट? दोनों का आप कॉम्बिनेशन ज्वाइन कर सकते हो। फीचर्स अगर मैं बात करूं तो वी हैव यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, जितने भी पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे पीडीएफ को एक्सप्लेन करता हुआ। साथ ही साथ वी विल प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर्स पढ़ेंगे तो यू हैव टू टेस्ट योर नॉलेज, तो आप मॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं ताकि आपको कोई एग्जाम की फीलिंग है। ऑल्सो वी प्रोवाइड पर्सनल गाइडेंस। जब आप ज्वाइन करोगे, आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या कॉल पे। सो आई विल पर्सनली सॉल्व योर प्रॉब्लम। वी ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल, जहां पे आप कम एक स्टडी प्लान देंगे ताकि आप जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई भी टारगेट हो, आप उसको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में अचीव कर पाओ। और अगर कोर्स कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, आपको एक बार एनरोल करना है, एक बार फीस देनी है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, एंड यू डू नॉट हैव टू एनरोल एवरी 6 मंथ्स और एवरी 2 मंथ्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार रजिस्टर करोगे, वी विल प्रोवाइड यू लाइफ टाइम वैलिडिटी, और ये तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। और हमारा जो स्टडी मटेरियल है, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ all the books and all the online resources, क्योंकि
एक बुक में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऑनलाइन मिलती है और ऑनलाइन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बुक में मिलती है। तो हमने कोशिश की कि हम परफेक्ट ब्लेंड रखें बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का अपने स्टडी मटेरियल में, ताकि जब स्टूडेंट हमारे पास एनरोल करे तो उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो आपको अब डेमो लेक्चर्स अपने बुक करने हैं या रजिस्ट्रेशन करना है हमारी वेबसाइट पे फॉर अवर कोर्स, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट niharkajaiswal.com और यू कैन कॉल अवर WhatsApp person 7957555009. So yeah, that is all for today's video. I will wait for your enrollment, or in case you have any query or doubt, you can contact us anytime. So I'll see you in the next video, guys. Bye, take care.